By the way, salivary gland Okay, sir. increases the, teeth surface से बढ़ाते हैं, और salivary gland produces amylase, जो starch को break down करता है. Well, what is this FSH, है ना? Okay, sir. Why is FSH? Is it? This is FSH, right? Yes. And this one is what? Yes. LH. So which hormone LH. goes up first? बेटा ये शोर आ रहा है आपके बैक साइड से, ये बैकग्राउंड. I think we So just 1 minute. ये भी चल रहा है शायद. Yes. So Sir, अब सही है. he says two hormones. ठीक है. So this one is they say FSH, because FSH matures the egg, है ना? So the moment FSH में drop आता है, you जी see, sir. drop in FSH causes what? Rise of LH from brain, है ना? और why जी sir. LH level drop क्यों करता है? Because LH makes the ovaries throw off their eggs. और फिर आपको पता है एक हार्मोन बनता है वहां से, प्रोजेस्टेरोन, जो व्हाट यू कॉल इट, येलो बॉडी मेक्स प्रोजेस्टेरोन. येलो बॉडी मेक्स, अस्सलाम वालेकुम सर. Yes. वालेकुम. येलो बॉडी produces progesterone that goes up till about this 1 week, and then its concentration starts decreasing. So do you know what is this hormone I'm showing by the graph? Anyone? Progesterone. Progesterone. So Amir Haider, which hormone rises first? FSH or LH? LH sir. No, FSH. FSH goes Sir, up. FSH का क्या role था? I forgot. It What is that? strengthens the lining of No, urethra, right? no. FSH matures the eggs in the ovaries. Follicle stimulating hormone. तो Okay. याद है बच्चों, जब FSH rise, वो progesterone करता था. वो नहीं, वो तो थिकनेस मेंटेन करता है. ऑस्ट्रोजन थिकनेस दे दो मेरे को. Okay, sir. तो देखें, FSH राइज हो रहा है, और फिर FSH का ड्रॉप होगा तो LH बढ़ जाएगा. ठीक है. तो आई मीन फर्स्ट FSH राइजेस, Okay, देन sir. LH राइजेस. अमीर हैदर, सुन रहे हैं आप? मिस्टर अमीर हैदर. जी सर मैं सुन रहा हूँ. आई एम लिसनिंग. So what does FSH do? FSH makes eggs go mature, and LH Yes. makes ovaries throw off their eggs. और जब egg release हो जाता है तो पीछे yellow body बनती है. Yellow body makes progesterone. So this line shows. Yeah, for 7 days. Yes. So what is F? What is states the name of hormones Y and H? So obviously Y was FSH and Z is LH. अच्छा, sketch the line to show progesterone throughout 28 days cycle. तो बच्चों ये जो है ना प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हैं उसमें 28 डेज में, वालेकुम 28 डेज साइकिल में. अगर प्रेगनेंसी हो जाए ना, तो फिर पता है प्रोजेस्टेरोन लेवल यूं रहता है, देन इट गोज अप एंड देन इट रिमेन्स हाई, इट डजंट गो डाउन. Yeah. Because Yes, sir. then progesterone keeps forming from what? Placenta. Placenta. Very good. Great. So you were knowing everything, mashallah. अच्छा बेटा, ओव्यूलेशन, सहर, ओव्यूलेशन एग कब रिलीज होता है? Sir, only I think it was only 14. No, 14. LH 14. 14 days. 14. हाँ. Turn the light on. Excuse me, better turn the light on. So yes, 14th day. Start of menstruation. ठीक है? 14th day पे. Yes. Main site of progesterone production during pregnancy. Anybody? Placenta. Placenta. Yellow. Yeah, placenta. Yeah, Placenta. placenta. Yellow body होता है during menstrual cycle. ठीक? Okay, sir. So during pregnancy it shall be placenta. अच्छा, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है. एग सेल जो है ना, वो एग सेल is 29 micrometer, then it becomes 22 millimeter. तो बच्चों आप मुझे बताएं, he says कि convert average starting diameter into Sir, millimeter. 0, it will be, I think 0.0029 multiplied by 1000. No, जैसे start में 29 micrometer था ना, तो आप इसको Yes. मिलीमीटर में करेंगे तो you have to divide it by 1000. Divided by 1000.
because you know millimeter to micro is multiplied by 1000, and micrometer to millimeter, this is micrometer to millimeter, हमने इसको Okay, sorry, sir. divided by 1000. और percentage increase, सर माइक्रो छोटा होता है या मिली? obviously, Micro, of course. yes, Micro. because 1 millimeter, Consists of 1000 micrometer. 1000 micrometer, yes. So if you want to convert like 5 millimeter to micro, you have to multiply this with 1000. But if there is like 5 micrometer to millimeter, you have to do 5 by 1000. 1005. Anyways, so the idea is a percentage change is final minus initial over initial times 100. Yeah. Final सर क्या Yep. परसेंटेज minus initial over initial Divided by initial. times 100. So for this we have, what's the final one? 22 0. millimeter. 22 22. And the 22 माइनस 0.7 इधर होगा 22 minus 0.029 divided by डिवाइडेड बाय 0.029 0.029 इनटू 100. अच्छा, अगर आप लोगों ने ये सॉल्व किया होता ना तो फिर बड़ा It was 7 point, आपको बोले क्योंकि बच्चे 7.826. जी जी कितना बेटा? 7, I think it was like 72.86 something. I don't remember It was properly. like 72.75 something 0. ठीक है, तो हमने इसको किया था 3 significant figures. 3. Yeah. So it was like It will be 72, 800 and 800. 800, yeah. And you end up having 3, 7, 2 and 8. So there are 3 significant figures. But the thing is, more important is कि आप लोगों ने ना पेपर सॉल्व करना है. So people send me PDF, ठीक है, तो वो हम चेक करके क्लास में डिस्कस करते हैं, बड़ा जल्दी टाइम बच जाता है. You go very fast. सर इसका 72 नहीं होगा, 78 होगा. 78 है, आप मार्क स्कीम चेक कर लें. I just checked my paper. Yes. No, it's not 78. ये नंबर लिखा हुआ 75762. तो देखिए उन्होंने इन 3 नंबर्स को ना बेटा, इन 3 को उन्होंने 762 को नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ किया. नियरेस्ट 1000 में बनेगा ये 800, ठीक है, और 75,000 उसी तरह 75,800 करके, तो टोटल आपके साथ ये 3 सिग्निफिकेंट आ गए. यही हमने यहाँ चलाया, यहाँ पे हमने किया 72, 750. तो नंबर तो चले डिफरेंट है बट सेम प्रिंसिपल, ठीक है. Yes. डिड यू गेट द आइडिया? Yes, sir. तो एडेप्टिव फीचर्स बताइए स्पर्म्स के. So a tail. Yeah, it has flagellum and acrosome to cut through the jelly coat of egg and swim through oviduct. हैदर भाई प्लीज 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 बेटा स्टेट कर रहे हैं, स्टेट, ठीक है. तो वन इज Tail flag acrosome. acrosome, one more. Yes, Amir. Yes, Mitochondria. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया. Yes. वो जेली कोट कट हुआ जो है ना, वो डिस्क्राइब, वो स्टेट में नहीं आया. Okay, sorry. This is what is name. This is Willis, ठीक है, many villi. And what is N? No, Lacteal. lacteus. Active. If you remember inside Willis, हैं? yeah, ये बेटा this is found in the small intestine, है ना, and is used to Yeah. that's सर ये हमने किया है ये वाला. definitely human digestive system. सर ये absorption के लिए है. सर सर ये ये वाला चैप्टर मेरे से सही नहीं हुआ, समझ नहीं आया था मुझे वैसे. बेटा ये देखो, ये Willis है and here is lacteal and And it also Willis has का है? blood capillaries. एक second, अमीर है देख, और इसके साथ yes there are blood capillaries as well. Back capillaries. अच्छा इकरा, आपको ना सर मैं विलिस का है. ये पूरा स्ट्रक्चर Willis है. तो अच्छा. दिस इज कैपिलरी. तो कैपिलरी ये इलियम में होते हैं, ठीक है, इलियम सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल में.
So lacteal will pick up glucose, fatty acid, glycerol, and the capillaries will pick up water, amino acid, glucose, these things. अच्छा सर, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, क्योंकि हमने जो एक पेपर ओ लेवल वाला ना वो डिस्कस किया, फिर हमने कहा इस क्लास में हम आईजीसीएस कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज करते रहेंगे, फिर आफ्टरनून वाली में आईजीसीएस, इधर ओ लेवल। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, ओके सर। आप लोग मुझे पेपर कोई भी बच्चा भेजेगा ना आप क्लास में, वो उसके मार्क्स वो जो रॉन्ग होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, तो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा काम। फॉर एग्जांपल देखें, रुबाइशा, इकरा, सहर, अमीर हैदर, जुरैद, ठीक है, रोशीन, अभी इंटरनेट उसका नहीं है, 6 बच्चे, अगर आप 6 पेपर भेजें और हर पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक वो डिस्कस देख। सेल एम, व्हाट इज एम, you know which Microvilli? My he says M secretes mucus, so the one that secretes mucus is always goblet cell. Okay. Goblet cell. Yes, you know they are found in air tract as well. So he says Yeah. state one other place where they are found. बच्चों, In trachea. Sir, Mm. trachea. trachea, nice. yes. अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब भी करना है आपने, एक्सप्लेन भी करना है, हाउ स्ट्रक्चर ऑफ विलस इज अडेप्टेड फॉर इट्स फंक्शन। तो नंबर वन, एक चीज हमें भूल गई कि विलस के अंदर जो है ना, ये जो अभी हमने बनाई थी, आई थिंक आई डिलीटेड इट, ओह माय गॉड दैट गॉट डिलीटेड। तो विलस के ऊपर ये जो You erased फोल्ड्स it. है ना, दीज वन दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई, Yeah. They increase the surface area for absorption. या दे फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो हम ये कहेंगे कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन में आप कहेंगे कि विलाई हैव, इकरा आर यू देयर, Willis has lacteal. Okay. Yes. सहर, अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी सहर बेटा, मिस सहर, Sir, villi जी are like small thin finger-like रुको 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 projections. रुको रुको, सहर जी सर। बेटा, मुझे डाउट होता है आप चल बंक कर रहे हैं क्लास, तो सर बताएं प्लीज, मुझे बताएं हाउ टू फिल द गैप्स। सर अभी हमने डिस्कस किया, Sir, अभी Willis has lacteal to absorb water मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था। and minerals. एनीबडी एल्स? Fatty acids and glycerol. या, एंड विलिस हैज कैपिलरीज टू एब्जॉर्ब डैश डैश। Water, glucose, and amino acids, and so on. एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा, दुरेज से पूछते हैं, एंड थिंग्स आर एब्जॉर्ब्ड। Yes. Third point is Willis also has microvilli for dash increase in surface area. ये भी अभी हमने डिस्कस किया बच्चों। For more, yes, no, yes. Anybody, Amir Haider, for further increase in surface area. Yeah. And then what else should be said about villi? So ये जो लिखा है second villi has capillaries to absorb water, minerals and glucose. हाँ, और फिर ये glucose and amino acid etc. could be absorbed by, लेकिन ये उसकी adaptation में नहीं आएगा। I was saying that diffusion and active transport. जी इकरा, अभी सहर, अभी हम फिल करते हैं इसको। तो पहले में क्या होगा, they have lactase to absorb fatty Sir, acids what about those goblet cell thingy? I don't and know. glycerol। वो छोड़ें, Willis has the course में नहीं है, has the capillaries to absorb glucose, amino acid, उसकी डिस्कशन लंबी हो जाएगी, और Yeah. and water etc. Water. And you know Willis has microvilli for further increase in surface। Surface area. और क्या हो सकता है बच्चों? Microvilli, one cell thick, Okay. good blood supply, lacteal। चलो हमारा कैपिलरी में आ गया ना। हाँ, तो वो जो मूवमेंट, यस, तो substances, you can write on substances are taken up by what? Diffusion
बच्चों, diffusion and active transport. Osmosis. Active transport. Yeah, active transport. Sorry. So will I have dash also? M से. Mitochondria. Mitochondria, sorry. Yes. So शहर mitochondria क्यों होते हैं बेटा विलाय में? शहर again disappeared. Sir, the energy is respiration. Energy for what? इकरा आप बताइए. Slow class है. Energy for respiration. इकरा से पूछना. Sir, respiration. अमीर हैदर से पूछना. Sir, for active transport because it needs respiratory energy. Yeah, for active transport. Miss Seher. State the name of blood vessels that carries from intestine to liver. Very popular बच्चों जो liver तक लेके जाती है hepatic. Hepatic Portal portal vein. vein. Very good. इकरा जबरदस्त. और मैं ये शहर से पूछ रहा हूँ. शहर बेटा, this is liver. So do you know what takes from intestine to liver? आप या तो साथ साथ मोबाइल यूज करिए या स्ट्रेस में या क्या करें बेटा, क्यों आपकी रिफ्लेक्शन स्लो है. This is intestine. So this is what is hepatic portal vein. Sir, मैं सुन रही हूँ. और मुझे बताएं जो लिवर से लेके जाती है अवे, what is that called? Anyone? Sir, Hepatic hepatic. vein. Hepatic. और बच्चों ये जो Yeah. लिवर को लेके आती है ब्लड, what is it called? Anyone? Hepatic Hepatic artery. artery. और ये है small intestine. जो सर ये ब्लड लेके आती है लिवर पे. हाँ, from heart. हार्ट के एओर्टा से निकलती है ना ये. तो बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके आती है उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं. The one that brings blood from heart is called hepatic artery, and the one that brings to heart is hepatic vein. और यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर भी होती है, आपको याद होगा ब्लड को. You all should know what is that. सर Bile. Gallbladder. first word. Oops. Sorry. Gallbladder. Well, so we are back. मुझे बताइए what is meant by the term stem cell. Stem cells are those which are differentiated या undifferentiated बच्चों? Undifferentiated. Undifferentiated. Will someone tell me what is undifferentiated? Undifferentiated. Sir, I don't know. Undifferentiated means unspecialized. Like होता है ना, जैसे root hair cell थोड़ा modified है, अपने function के लिए modified. Like RBCs are modified. So stem cells are the ones which are not modified. ठीक है? Undifferentiated. And undifferentiated cell. And it retains the ability to divide. Like beta retains the ability to divide, मतलब it continues to divide. जैसे हमारे न्यूरॉन सेल्स हैं, are those differentiated or undifferentiated? Differentiated. Anyone else? Differentiated. रबायशा, इकरा, सहर, बेटा आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं. Differentiated. Yes. So they are unable to divide. मेरा माइक सही चल रहा है. जी, they are unable to divide. But cells which can divide and which are undifferentiated, they are called stem cells. Well, जी, this is about explain the difference. Explain the difference for and the average number of mitochondria in each type of cell. This is 5 marks question. So there are two types of cell, heart muscles and epithelium and small intestine. So which one have more mitochondria? Epithelium. Yeah, will someone explain me why? Because it is used for absorption. I mean, energy is required for absorption, so there is more need for mitochondria to produce respiratory energy so that active transport can occur. Yeah, anyone else? Hello, बच्चों. Well, anyway, epithelial cells have. Better turn your mic muted. मुझे लगता है कोई बात करेगा मुझसे. कौन बात करेगा मुझसे गंदे मुंह से? Yeah, let me mute him.
I don't know how to mute him. Wait. Anyway, तो बच्चों epithelial Sir, cell. you muted me. I didn't. I am. There's no noise from my mic. No, it's the rate I'm talking about him. Anyway, It was me, sorry, sir. no issue. Epithelium and small intestine, you can see that this needs more mitochondria and then heart muscles. तो इसका हम क्या करेंगे कि epithelial cells, मैं लिखता हूँ, आप मुझे कंप्लीट कराएं बच्चों. That epithelial cells dash more. Respire more. Yes. Inspire more. To get ATP for dash. A से. Assimilation. Now active transport, the absorption. Oops. Yeah. Epithelial cells means the ones that make cover, right? Got it? Yeah. And then you can give examples, like for example, glucose. सर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई ये वाला. आई गेस आपने भी कराया नहीं, आई डोंट थिंक सो. जी मैं आपको बताता हूँ, आर एब्जॉर्ब बाय, ये मेरा पहला टॉपिक था सेल्स वाला ना, मैं आपको बताता हूँ, आर एब्जॉर्ब बाय डैश, मे बी स्किप हो गया. आप द इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये एपिथेलियल सेल्स है ना, सी स्मॉल इंटेस्टाइन के वेयर एब्जॉर्प्शन अकर्स. तो शहर आप देखें उसमें ये विलस होती है, विलस में लैक्टियल भी है, कैपिलरी भी है, सब कुछ ठीक है. तो वहाँ पे जो चीज़ें इंटेस्टाइन से अंदर एब्जॉर्ब होती है ना, दे आर ईदर एब्जॉर्ब बाय डिफिजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट? जी सर. Yes, sir. तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है थ्रू यूजिंग एटीपी, रेस्पिरेटरी रेट. सो दिस इज व्हाट ही सेज कि why cardiac why epithelial cells. Using ATP? Obviously active transport means the one that uses ATP, respiratory energy. Active transport is from low to high concentration, Okay. using ATP through proteins which are fitted in the membrane. ये तो पूरा डिफिजन ऑस्मोसिस का टॉपिक था. आई डोंट नो. अच्छा मुझे लगता है सर आपने शायद ये मिस हो गया. उसके बाद हमें ज्वाइन किया होगा ना. ये बेटा देखिए, तो जी सर. epithelial cells and the small intestine, why they need more mitochondria? Because they have to, yes, they need to respire more, so they need to have more mitochondria. And why they need to respire more? To have ATP for what? For active Aerobic. Transport. Active transport. transport. And you can give some example like glucose and amino acids are absorbed by kidneys. Okay? And the next you can write on. सर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. Sorry. कुछ नहीं सर. और हमने इसको कंपेयर करना है कार्डियक मसल के साथ में. तो हम कहेंगे कार्डियक मसल don't need to carry out active transport. ठीक है? Why sir? क्योंकि वो Because oxygen can diffuse. Sir, can you please explain this one again? यस देखो ये दो सेल्स है ना, एक तो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं जो विलस बनाते हैं, और एक है ये हार्ट मसल्स हैं, और एक आरबीसी तीन है जो अमीर है जो कह रहे हैं. तो तीनों में आपके ख्याल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होती है? हेलो इकरा. Obviously the small intestine there active transport occurs, yes or no? Yes, sir. Yes. और हार्ट मसल्स क्या करते हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट, यस नो? Yes, the contract. और आरबीसी कोई ऐसी एक्टिविटी करते ही नहीं जहाँ पे एनर्जी चाहिए. तो ये हमने डिफरेंस बता देना कि एपिथेलियल सेल्स, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स हैं या जो विलाय है, दे कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. They actively absorb glucose and amino acids, so they need ATP. ATP comes from respiration, और respiration होती है माइटोकॉन्ड्रिया में. इकरा शहर समझ रहे हो? जी सर. Epithelial cells जी सर. respire more to get ATP for active transport, so they have more mitochondria. और आप इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड किसी एक का नाम रखते हैं, they are absorbed by active transport. अच्छा, cardiac muscles don't need don't carry out active transport, the active uptake, ठीक है? But
they contract, है ना? They contract, so need ATP. Yes or no? Yeah. Yes, sir. Yes. A little lesser than epithelial. Provide energy to the muscles which Yeah. are contracting. And RBCs, you know, don't need. Do RBCs need ATP? No, sir. No, sir. क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, उन्होंने ऑक्सीजन कैरी करना होता है और ऑक्सीजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से टेकअप नहीं होती. डोंट ईट Diffusion. ATP, so have no mitochondria. You can write on why they don't need ATP, because they carry oxygen, है ना? So oxygen simply dash into them. इकरा. सहर. अमीर हैदर. Simply Diffuse, sir. डिफ्यूजर्स, या ये ठीक है. Yes. तो बच्चों समझ आ रही है, इकरा समझ आ रही है कि आरबीसी में ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है अंदर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती ही नहीं, उनको एनर्जी नहीं चाहिए. एपिथेलियल सेल्स ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी होती है, दे नीड मोर एनर्जी, मोर दिस. एंड कार्डियक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, इसलिए दे नीड एनर्जी, सो दे नीड माइटोकॉन्ड्रिया. सर इस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं प्लीज जी डेफिनेटली. मैं आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक की. बहुत कर रहा है क्वेश्चन. जी सर. शहर देखो, इन तीनों में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव अपटेक होती है, ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर. और एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी Yes. चाहिए, यस और नो? यस. और वो एटीपी कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. तो दैट्स व्हाई दीज intestinal cells will I have lot of mitochondria. Got it? माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ. ओके सर. फिर कार्डियक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन तो करनी होती है, लेकिन उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव अपटेक तो नहीं करनी ना. तो दे हैव सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटीपी. और आरबीसीज में कोई ऐसा वर्क है ही नहीं जहाँ पे एटीपी चाहिए ना. दे जस्ट कैरी ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन आरबीसीज के अंदर और बाहर सिंपली डिफ्यूजन से आती है. और डिफ्यूजन पैसिव प्रोसेस है, डिफ्यूजन इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस. डिफ्यूजन में एटीपी नहीं चाहिए, सो दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया. गॉट इट? ओके सर. तो उसमें ब्लड डिफ्यूज होता है जिसमें एटीपी नहीं चाहिए होती. ब्लड नहीं, आरबीसीज क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजन गोज इनटू आरबीसीज एंड आउट ऑफ आरबीसीज सिंपली बाय डिफ्यूजन. एंड डिफ्यूजन डजंट नीड एटीपी, so they don't need mitochondria as well. ठीक है? ओके सर. ATP as a result of respiration बनती है. अच्छा, तो बच्चों ये बताओ कि frogs are classified as amphibians. ठीक है? तो फीचर्स मॉइस्ट स्किन. amphibians के दो फीचर्स आप बड़ा जबरदस्त बता रहे हैं. moist skin, very good. एग इन वाटर. Yeah, they lay eggs in water. Their eggs have no shell. No shell, yeah. You know when they are in water, they respire through dash. Anybody? Gills. They respire. थ्रू गिल्स. Gills, very good. अच्छा, ये आई है, ह्यूमन आई. तो इसके बाहर सबसे बाहर क्या होगा? ये इकरा बताएगी. इकरा Iris. इकरा को बता रहे थे बेटा. Sir, cornea. Ikra, this is cornea. And Miss Ikra, what is Yeah. H? Sir, I think it's pupil. जल्दी बताओ. लेंस नहीं, लेंस. Yes. प्यूपल ये आगे है. प्यूपिल नहीं है. नहीं नहीं, ये पूरा बड़ा लेंस है. देखें, ये सारा लेंस है. प्यूपल तो ये होल है ना आयरिस के बीच में, जैसे Sir, ये. वो line उसके अंदर तक जा रही है. It's not outside. वो अंदर जा रही है. Like the line is inside. जी So सर. pupil नहीं होगा. तो भाई पीपल है सर. देखो, पीपल बाहर होता है. पीपल ये आयरिस के बीच में एक छोटा सा होल है. पीपल तो ये है, उसके बाद जाके ये पूरा लेंस आ रहा है ये. प्यूपिल क्या है फिर? पीपल तो सिंपली एक होल है इन द आयरिस. दिस इज पीपल. अच्छा सही. अच्छा ओके ओके. और ये पीछे आयरिस है और ये लेंस है. और इसके साथ लगे होते हैं क्या? सेलेरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट. सेलेरी मसल्स. सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और उनके साथ लगे होते हैं सेलेरी बॉडी. एनीवेज, तो व्हाट इज जी? Cornea. बच्चों, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट या ओपेक? So Transparent. Transparent. Well, anyone tell me what's the function of cornea? So to let the light in the eye. ट्रांसपेरेंट. Allows the refraction of light. सर अलाउज द लाइट, मैक्सिमम लाइट. इकरा जबरदस्त. रिफ्रैक्शन.
इकरा बता रही है, इकरा क्या बता रही है कि रिफ्रैक्शन, बेंडिंग द लाइट. आई लाइक दिस वर्ड, रिफ्रैक्ट. कॉर्निया रिफ्रैक्ट्स लाइट टू पीपल. यहाँ से वो लाइट रेज आती है ना, जिधर से भी आती है वो उनको बेंड करता है टुवर्ड्स द पीपल. पीपल यहाँ पे एक होल होता है छोटा सा, ठीक है, वो इधर भेजता है सारी लाइट. तो बच्चों इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन. कॉर्निया ओके सर. cornea is transparent, it refracts, bends light to people. और लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है फोकसिंग. लेंस विल गेट बिगर एंड स्मॉलर अकॉर्डिंग टू द डैश. जल्दी से बताओ. Distance. वाह, डिस्टेंस. अमीर है, जबरदस्त. या तो लेंस का काम है फोकसिंग. इट फोकसेस लाइट रेज ऑन डैश. Retina. ऑन अच्छा बात तो फोविया. ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है. सर देखो, फोविया भी नहीं होता. हाँ देखो ये, यस, ये ऑप्टिक नर्व है. तो इसके स्टार्ट में यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये जगह Blind spot. ब्लाइंड स्पॉट. और पता है इससे थोड़ा सा ऊपर करके है फोविया यहाँ पे. Yeah. Fovea सर or ये yellow रेटिना spot. पे फोकस करते हैं, फोविया पे फोकस करते हैं. दोनों एक्सेप्ट होते हैं. आप रेटिना भी कह सकते हैं, मतलब ताकि वो मर्ज इधर मिडिल में ना मर्ज करें, ठीक है. रेटिना ओके जब कलर्ड विजन हो तो फोविया पे, अदरवाइज रेटिना. आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर GLH हमारा हो गया. नेक्स्ट. अच्छा ये के सर. सर आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी. सर मैं भूल गई कि अगर हम किसी फार ऑब्जेक्ट को देखें तो क्या होता है? लाइक लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट्स लेंस क्या होता है? ऐसे इट क्या होता है? इट डिपेंड्स कि अगर आप ब्राइट लाइट में देख रहे हो तो दिस विल फोकस लाइट रेज ऑन येलो स्पॉट. अगर डिम सर में ये वाला टॉपिक करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसको वो कर लें, डायग्राम से सीख लें, फिर उससे आप जब भी हाँ डायग्राम बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा. एग्जैक्टली जी. सर नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर हम मैं लोग आपको आंसर, कोई चीज लेट दूर मी है लेट मी लेट मी उसको आंसर. देखें. मैं आपको बताता हूँ ना. तो व्हेन यू लुक एट फार ऑब्जेक्ट, इफ इट इज ब्राइट तो लेंस विल फोकस लाइट रेज ऑन फोविया. इफ इट इज डिम इट विल फोकस ऑन जनरल रेटिना अदर देन फोविया, बिकॉज फोविया पे रॉड्स नहीं होते, ठीक है, जो डिम लाइट को डील करते हैं. तो अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे मर्ज होने से चाहता है, पीछे जाके मर्ज होने से चाहता है. इट लेट्स लाइट रेज टू हिट द रेटिना. आपको याद कीजिए या कि ब्राइट ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं कौन, और वो फोबिया पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. तो अगर आप, जैसे आपने कहा ना, लेंस डील्स विद फार ऑब्जेक्ट, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, अगर वो रात के टाइम देख रहे हैं तो लेंस विल फोकस द लाइट रेज ऑन रेटिना. और दिन को देख रहे हैं तो इट विल ओके फोकस सर. लाइट रेज ऑन फोबिया. गॉट इट? सर मैं कह रही थी कि लाइक सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, और जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हाँ, वाला. जब आप दूर देख रहे होते हैं तो सिलेरी बॉडी रिलैक्स करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स गेट स्ट्रेटन एंड लेंस गेट्स बिग एंड थिन. और जब करीब देख रहे हैं तो सिलेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूजन एंड लेंस गेट स्मॉल एंड थिक. सर कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हिच व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सिलेरी बॉडी का. जी. जब आप करीब देखते हो तो सिलेरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूजन एंड लेंस गेट स्मॉल एंड थिक. ओके सर, समझ आ गई. अच्छा बेटा, ये जरा देखते हैं. व्हाट आर दीज? KLM. K is cell membrane, L is cytoplasm, और M क्या है? डैश न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. हैप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं, सॉरी, हैप्लॉइड तो नहीं है, स्पर्म नहीं है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या. अच्छा, 2 parts ऑफ मेमेलियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोई बताएगा मुझे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. वेरी गुड. तो K is cell membrane, L is cytoplasm, M is diploid nucleus. this is nucleus, and Or here नो, are खाली. brain and spinal cord. Nice. वेल ये बहुत इजी क्वेश्चन है. आप ये इकरा सहर मुझे बताएंगे. सहर मुझे ये बताएं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला फोबिया या ब्लाइंड स्पॉट? सर ये ब्लाइंड स्पॉट है. Blind spot. या बिकॉज देयर इज नन. और ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जी सर. कौन ज्यादा है? फोबिया. यस, दिस गाय इज फोबिया. वेरी गुड. येलो स्पॉट है ना. अच्छा बच्चों, ये एंड हो रहा है तो आप मुझे रिजॉइन कर सकते हैं अभी जल्दी से प्लीज. हम ये पेपर को कंटिन्यू कर लें. जी sir. जी थैंक यू. Yes, sir. जी सर. थैंक यू. Sir, could you please send this recording because I joined a bit late, मैं so I सेंड don't want to मैं miss सेंड out कर. on anything. आई विल. Thank you. वेलकम. Thank you.